airplane. रिकॉर्डिंग शुरू हो गया? ओके, ऑलराइट, लेट्स गो। स्मूथ यार, मीनिंग आई एम गेटिंग यूज्ड टू ऑफ दिस DCT। क्लच नहीं है, गियर शिफ्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, यू नो, सो गेटिंग यूज्ड टू ऑफ दिस। लेट्स गो दिस साइड फर्स्ट। It is beautiful, beautiful. Right now I am in the sports mode. It is launching. Woo! Wow. So it has got the Powerboy. So about the specification, it has got the 1100cc engine, 1083cc engine, and puts out 97 brake horsepower and 103 Newton meters torque. And it is beautiful. Suspension is just amazing. Suspension is, by the way, by Showa, semi-active suspension, and it is working beautiful. Very nice suspension, superb. I expected little less traffic, but today it is too much. Oh, in the slow speed, you know, you don't need to do anything. It will drive by its own. Let me put it in the sports mode. Yeah, now I am in the sports mode. Oh boy, it's too much power. I think all the power is now available. You know, immediately you get the power and immediately it cuts off. The moment you drop the accelerator, the power is gone. So thereby you need to be little careful. And on the hill also he's finding no problem. Easy, piece of a cake. थोड़ा सा एक्सेलरेट करोगे और आपको zoom हो रही है पर ये तो. So this is something you will have to get used to. और downshift बहुत easily हो रही है, अपने आप हो रही है although. So in the traffic this is breeze. Riding this in the traffic is easy, very easy bike to ride. Seat height is very manageable. It is 810 minimum and 830 at the highest setting. So right now I am at 810. हॉर्न का पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कि ऊपर की तरफ में, थोड़ा नीचे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। नहीं जाने दे। या मिरर्स नहीं लगाए इन्होंने, दैट्स समथिंग रॉन्ग। आई एम फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट टू राइड। स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा पावर क्या है कि पावर बस्ट होता है इमीडिएटली। यू रिंग द थ्रोटल, थोड़ा सा मैं थ्रोटल घुमाऊंगा, देखना, ये देखो, ये देखो। सो इमीडिएटली आपको पावर इतना ज़्यादा मिल जाता है ना, इट्स टू मच, यू नो, ऑलमोस्ट 100 ब्रेक हॉर्स पावर इमीडिएटली। ओह बॉय। Let me go to an area where actually I can ride this above at least above 50 kilometers per hour, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो रहा है। The great thing is that I need not do anything about the clutch and gear shifting. It's not there. Woo! Feels really awkward, but you know I am enjoying it. ये windshield जो है it is adjustable and अभी मैंने lower setting पे कर रखा है, so it can go above approximately 2 to 3 inches more. So this bike has 6 riding modes. One is urban, gravel, tour, and off-road, and user 1 and user 2. So user 1 and user 2 you can completely customize. You can have your own map of ABS and traction control. Honda selectable traction control, which is unique in its own, and Honda was the first company, I guess, which has introduced the engine immobilization system, first time in the bikes. Oh boy, it rides really fast. It has got the wheelie control also. It has got the cornering lights, cornering ABS. Okay, I am in the sports mode, and in sports mode something that I would not recommend you to actually be in the city, because the power delivery is too quick. Because power बहुत जल्दी आ रहा है, देखो, ये देखो, ऐसे कि हवा में उड़ा के लेके जाएगा बाइक। सो आई वुड नॉट रिकमेंड स्पोर्ट्स मोड इन द सिटी। वैसे तो चला सकते हो आप, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट नीड टू गेट यूज्ड टू ऑफ इट। देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक, आई एम नॉट एंजॉइंग इट मच, बिकॉज हाउ कैन आई रियली एंजॉय इट इन दिस ट्रैफिक, इट इज़ टू मच। इंडिकेटर्स कहाँ है? हाँ, इंडिकेटर डाल दिया है टूवर्ड्स। भैया ऑडी को टक्कर मारने वाले थे भैया, इट्स वेरी बैड।
आई एम स्वेटिंग रियली बैड। अबे यार इतना ट्रैफिक में कैसे टेस्ट राइड करेंगे, वो भी होंडा अफ्रीका ट्विन। सो इसका जो TFT स्क्रीन है, इट्स रियली ब्राइट। आई थिंक इट इज़ वेरी विजिबल, एवरीथिंग इज सो क्लियर। और इसके अंदर क्या क्या नहीं मिलता है यार, सारी चीज़ें इसमें। यू गेट द नेविगेशन, यू गेट द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यू गेट द एप्पल कार प्ले, एंड यू कैन लिसन टू योर म्यूजिक, यू कैन टेक योर फोन्स एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट यार। इट्स टू मच टेक इन दिस, देर आर सो मेनी बटन्स एक्चुअली, एंड विच इज़ काइंड ऑफ लिटिल कन्फ्यूजिंग। यू नीड टू गेट यूज टू ऑफ ऑल दिस थिंग्स, अदरवाइज इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मुझे केवल 5-10 मिनट लगे इसको नेविगेट करने के लिए। जो शोरूम में अपना मैनेजर है उसने मुझे बता दिया, एंड इट वाज ऑल इजी। ओह मैन, वाओ, व्हाट अ टर्निंग रेडियस, हैंडल बार इज सुपर। टाइगर में इतना टाइट हो जाता ना, सो फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू मैन्यूवरिंग दिस बाइक इन द सिटी इज ब्रीज। ओह बॉय, अरे स्पोर्ट्स मोड। Oh, brakes are superb yaar, brakes are superb. 300 and how much, 310 up front and 256 back, twin disc front and a single disc at the rear. Good brakes yaar, very good brakes. And the tires are from the Metzeler, and front tire is 21 inch and the rear is 18 inch. grip बहुत अच्छी मिल रही है, tread pattern काफ़ी aggressive है। What else? The ground clearance is 210 mm, which is amazing because मैं सोच रहा था कि 810 सीट हाइट के साथ में ग्राउंड क्लियरेंस 210 यार कैसे अचीव किया इन्होंने, which is really great यार। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है इसका। टर्निंग रेडियस इज रियली ग्रेट ऑफ दिस बाइक, डजंट लॉक अप सो अर्ली, उसकी वजह से आपको चलाना ऑटो कैंसलेशन शायद नहीं है। एंड राइडिंग दिस बाइक इन द सिटी इज फन, real fun. Like the seat is very comfortable, the seat is just amazing. बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा इस बाइक पे। So far whatever I have ridden, I think I have enjoyed this bike and I'm sure that this is going to be a lot of fun on the highway as well. 2-4 फीचर और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टूरिंग, एंड दैट इज़ दी क्रूज कंट्रोल। और अगर आप इसको कहीं कोल्ड प्लेसेस में ले जाते हैं, यू गेट दी हीटेड ग्रिप्स एज वेल। दिस इज हाउ इट लुक्स यार, इट लुक्स रियली गुड यार, वेरी पर्पसफुल एंड द बिल्ड क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग यार। फ्यूल टैंक है, इट इज़ 24.5 लीटर, सो अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर की रेंज तो कहीं नहीं गई है। सस्पेंशन इज जस्ट अमेजिंग, इट्स अ सेमी एक्टिव सस्पेंशन and the front and rear travel is just amazing. The brakes are good from Nissan, the brakes are good, exhaust sound is amazing. बहुत अच्छी बाइक है। and क्या है इसमें कमी क्या है, I don't find any flaw because it doesn't heat up at all. मुझे हीट महसूस ही नहीं हुई। और इसका जो रेडिएटर फ़ैन है, स्प्लिट रेडिएटर्स आर वर्किंग रियली ग्रेट, क्योंकि इसका जो एग्जिट है हॉट एयर का यहाँ पे और राइडर वहाँ पे, सो ऑब्वियसली उसको बिल्कुल भी हीट महसूस ही नहीं होती है। when you see it online, no, YouTube वगैरह के ऊपर, so it looks very thin. In reality it is a big bike, it's a very tall bike, मेरे कंधे तक आता है इसका विंडशील्ड। नॉब से सेट कर सकते हो। अप फ्रंट यहाँ पे बहुत इजी है, इतना ज़्यादा इजी नहीं है, बट यू नीड अ टूल टू एक्चुअली एडजस्ट द फ्रंट सस्पेंशन। रियर सस्पेंशन एडजस्टमेंट बहुत इजी है, और सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत लंबी और बहुत नैरो है, सो आपके फुट यू कैन firmly keep on ground, and DCT is beautiful yaar. That's it. So it is Honda Africa Twin 1100 CRF for you. I really loved it. अभी मैं आपको सुनाता हूँ इसका एग्जॉस्ट। Okay, listen to it. पूरे ट्रैफिक में लोग मेरे को देख रहे हैं, अभी सारे लोग मेरे को ही देखने लग जाएंगे। चलो अभी ट्रैफिक खुला है, निकल जाते हैं। सो आई विल पुट इट इन दी ड्राइव मोड। ड्राइव मोड कुछ नहीं है, आपका गियर एंगेज हो गया है, दैट्स ऑल, एंड देन यू जस्ट राइड इट ऑफ, दैट्स ऑल, दैट्स हाउ यू डू इट। होंडा अफ्रीका ट्विन, अमेजिंग, मज़ा आ गया। The DCT will cost you around 17,54,000 एक शोरूम पैन इंडिया, so it will be close to 20.8 lakh on road
पैन इंडिया। अब ये प्राइस कितना अच्छा है ये ख़राब है ये तो मैं नहीं बता सकता। और जो उसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला मॉडल है दैट इज़ 1.5 लाख रुपीज़ चीपर देन दिस एंड आई थिंक दैट विल सेट यू बैक बाय 18.5 अप्रोक्सीमेटली 18.5 लाख में आपको मैनुअल मिलेगा एंड डन।